Hello students, I Parvesh Kumar Bansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture, we see the definition of lattice, properties of lattice and sublattice, and some laws that hold on the lattice. So today in the today lecture, we see the types of lattice in the complemented lattice, distributed lattice, and Boolean algebra. We see today's lecture. So let's crack the gate and subscribe our channel and like it. So first thing is types of lattice में today topic is types of lattice. तो टाइप्स ऑफ लैटिस में हम फर्स्ट पढ़ेंगे हम बाउंडेड लैटिस, सेकंड वी सी कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, and third thing is distributed lattice, and last one fourth one is the Boolean algebra. So these four types of lattice we see today. So first thing is the bounded lattice. तो बाउंडेड लैटिस हमारा क्या कहता है? तो लैटिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली L in which all pairs of element join and meet is exist. That's called lattice. In the bounded lattice there is some modification. Join or meet have a upper bound and minimum bound of the lattice I and O that holds. So in this definition there is two things and added, that is I and O. Some books prefer I as a 1 and O is the 0. We see. So first thing is the definition. First thing is the upper bound of lattice. The upper bound of lattice says, upper bound of lattice, either we say it is maximum, that is represented by I. इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट सेज इन ए लैटिस L, if there exists an element I, if there exists an element I such that for all A that belongs to lattice A of R of I, that means A is related to I, then I is called upper bound of lattice. ये हम लोग देख भी चुके हैं और ये हम आज के लेक्चर में भी क्या है, ये बाउंडेड लैटिस के केस में क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, अपर बाउंड ऑफ लैटिस. लाइक वाइज यदि हम लोअर बाउंड की बात करें, यदि हम बात करूँ लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से. तो O क्या कहेंगे? यदि मैं शॉर्टकट डेफिनेशन लिखूं तो क्या, फॉर A that belongs to A L O R A, तो इसको क्या कहेंगे हम? O is called the lower bound of lattice. तो उसके रिगार्डिंग हमारी क्या है, कुछ डेफिनेशन है. एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी विद रिस्पेक्ट टू बाउंडेड लैटिस. तो जो भी हमारे फाइनाइट लैटिस होंगे, एवरी फाइनाइट लैटिस will always be bounded lattice. For example, there is a lattice in which there are 4 elements A, B, C and D. तो this lattice जिसमें क्या है हमारा I and O, तो I and O मीन्स क्या हुआ? मैक्सिमम. I मीन्स मैक्सिमम एंड O मीन्स मिनिमम. तो D इज मैक्सिमम, D is represented as I and A is represented by O.
तो जिसमें क्या होगा हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब डेट मीन्स यूनिक, तो वो क्या होगा हमारा अपर बाउंड of lattice and minimum lower bound of the lattice is exist that is represented by I and O, that's called the bounded lattice. For example, यदि इसमें मैं एक दो केस और लूँ, तो यदि हम इस टाइप का जो लैटिस लें, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा हमारा, इट इज़ नॉट बाउंडेड लैटिस। यदि मैं इसमें और भी एलिमेंट को ऐड करूँ, यदि मैं इसको कहूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेट इज लेस देन इक्वल, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ नॉट बाउंडेड लैटिस। Why? Because in this lower bound of lower bound of the lattice is exist, that is equal to 1, but upper bound of the lattice is not exist, that means it is not a bounded lattice. Next is the complement of a lattice. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैटिस। इसके बेसिस पे जो आगे के जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ये सब के सब क्या है बेटा, हमारे इसी के बेसिस पे सॉर्ट आउट होंगे। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग आई राइट डेफिनेशन हियर, लेट एल बी ए बाउंडेड लैटिस। सबसे पहले क्या है, ये हमारा बाउंडेड लैटिस होना चाहिए। डेट मीन्स क्या होगा, फाइनाइट होगा। For any element A that belongs to lattice L, if there exists an element B that belongs to lattice L such that A join B gives you I and A meet B gives you O, then B is called complement of A. And we say A and B are complement to each other. For example, there is a lattice L, A, B, C and D. There are 4 number of elements in which we will find out what is the complement of B and what is the complement of C and D. तो complement of lattice को हम कैसे, complement को हम किससे, कोई भी हमारा यदि नंबर ऑफ यदि एलिमेंट इज A, देन complement is dependent by power of C. तो हमें क्या करना है, complement of lattice फाइंड आउट करना है। तो complement हमारा किस किस का होगा, A का complement होगा, B का complement होगा, C का complement होगा एंड D का complement होगा। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन में लिखा है, सिंपल, यदि हम कोई भी 2 पेयर ऑफ एलिमेंट्स लें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया A और B, A मीट B, लाइकवाइज A C एंड A मीट C, लाइकवाइज B ज्वाइन C एंड B मीट C, एंड लाइकवाइज और भी हम जैसे और भी पेयर ऑफ एलिमेंट रख सकते हैं। तो टोटल हमारे क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत सारी है। एक बार हम ए और डी को ले सकते हैं, बी और डी को ले सकते हैं, सी और डी को ले सकते हैं। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 या 3 के लिए दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन द केस ऑफ ए ज्वाइन बी, यदि मैं ए और बी का ज्वाइन करूँगा तो क्या होगा, ज्वाइन क्या कहता है हमारा, अपर बाउंड ऑफ द लैटिस, और अपर बाउंड में क्या आएगा हमारा, एक तो बी आएगा और डी आएगा। अब उसमें क्या आएगा हमारा, जी एल बी ग्रेटेस्ट, इसमें क्या होगा हमारा लिस्ट अपर बाउंड हमारा क्या आएगा, बी आएगा। तो इसका क्या हो गया हमारा, ए और बी का हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और ए और बी का क्या आ रहा है हमारा, यदि हम इसमें हम चेक करें तो क्या आएगा बेटा, ए एंड बी।
ए सॉरी ए मीट बी, तो ए मीट बी का हमारा क्या आएगा, ए आएगा। लाइक वाइज ए और सी का हमारा ज्वाइन क्या आएगा, डी। इसमें भी क्या है, ये भी हमारा डी आ रहा था, और ए और सी का हमारा क्या आ रहा था ज्वाइन, मीट क्या आएगा, ए। लाइक वाइज बी और सी का क्या आएगा, हमारा डी आएगा, और बी और सी का क्या आएगा, ए आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जहां पे क्या हो गया हमारे जिन दो पेयर एलिमेंट्स को मैं लूंगा, जिन दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स को लूंगा, लेट सपोज मैंने लिया किसको, बी और सी को, तो बी और सी का यदि मैं ज्वाइन निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। और बी और सी का यदि मैं मीट निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ए। और जो डी क्या है, डी इज द आई ऑफ द लैटिस, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द लैटिस, एंड ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लैटिस। तो जहां पे बेटा ये ऐसी हमें केस मिलेगा जिनका ज्वाइन और मीट, जिन पेयर का हमें आई और ओ मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दिस केस बी एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी इक्वल टू सी। अब हम देख रहे हैं कि ए और डी, कभी भी हमेशा बेटा इस बात को याद रखना कि जो भी फाइनाइट लैटिस होगी जिसमें क्या होगा, हमेशा आई और ओ एक दूसरे के हमेशा कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो मतलब क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डी होगा और डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए एंड डी। तो ये क्या होंगे, आई और ओ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, बी एंड सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, बट ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बिकॉज इन द ए और बी, यदि हम ए और बी का यदि ज्वाइन निकालूंगा तो क्या निकलेगा मेरा, बी निकलेगा, और ए और बी का मीट निकलेगा तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो मीट तो मैं मिल जा रहा है, बट क्या है, जो मैं अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं। इस पर हम और भी एग्जाम्पल करते हैं। A, B, C, D, E and F. In this we check the what is the complement. तो फर्स्ट थिंग क्या है, यदि हम इसमें देखें तो हमारा क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट तो F होगा, बिकॉज I कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, O होगा, और O का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, I हो गया। तो हमारा क्या हो गया, A का कॉम्प्लीमेंट तो हमारा क्या होगा, F होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और F का कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब हमें चेक करना है बाकी अदर पेयर्स। लेट सपोज आई टेक बी एंड ई, यदि मैं बी और ई का ज्वाइन निकालूं एंड बी और ई मीट निकालें, मीट ज्वाइन ऑफ बी एंड ई क्या होगा, फर्स्ट यू टेक टू फिंगर्स, फर्स्ट पुट ऑन द बी एंड ई एंड पुट ऑन योर अबव साइड, जहां पे वो मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द ज्वाइन। तो हमारा ज्वाइन क्या हो गया, एफ। लाइक वाइज यदि हम देखें तो बी और ई हमारे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिलेंगे, नीचे की साइड में ए पे। तो हमारा एफ और ए मिल रहा है, यही हमारा क्या है, आई एंड ओ है। दैट मीन्स क्या है, बी एंड ए क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट थिंग, यदि मैं बी को सी के साथ देखूं, यदि मैं बी और सी का क्या निकालूं, ज्वाइन निकालूं, तो बी और सी हमारे पहले टाइम कहाँ मिलेंगे, एफ पे मिलेंगे। और यदि मैं बी और सी का यदि मीट निकालूं तो अगेन क्या मिलेंगे, ए पे मिलेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, अगेन इट इज आई एंड ओ। दैट मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ई कॉम्प्लीमेंट बोथ हैव द सेम। लाइक वाइज जैसे मैंने बी के केस में निकाला है, इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि डी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा मेरा, ई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वलेंट होगा। क्या मैं कह सकता हूं, यदि मैं डी और ई का ज्वाइन निकालूं तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, और डी का मीट निकालूं तो ए मिलेगा। लाइक वाइज इफ वी take the join or meet of D and C, then again we get the F and A. That means D is again complement of E and C. तो E और C का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, B भी हो गया और D भी हो गया। लाइक वाइज A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, F हो गया। अब हम एक केस ऐसा देखते हैं जिसमें हमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट ना मिले, जिसमें हम कहेंगे सर इसमें हमारे कॉम्प्लीमेंट मिलने में दिक्कत आ रही है। लेट सपोज there is a lattice, there are A, B, C, D, E and F। सेम मैट्रिक्स है, बस मैंने क्या करा इसमें सेम लैटिस में मैंने क्रॉस एज बना दी। तो यहाँ पे हम चेक करें तो क्या होगा, अगेन यदि हम चेक करें तो सिंपल इतनी बात तो हमें क्लियर है, इन दिस केस ए और एफ को तो मैं चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। लाइक वाइज यदि अब मैं इनको चेक करूं,
ये मेरे जो कंफ्यूजिंग पेयर है कौन कौन से हैं, डी ई एंड बी सी। इफ आई टेक बी एंड सी, यदि मैं बी और सी का यदि मैं ज्वाइन निकालूं तो बी और सी को यदि मैं मिलाऊं तो पहली बार कहाँ पे मिल रहा है, पहली बार कहाँ पे मिल रहा है, ई पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनका ज्वाइन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और मीट क्या आ रहा है, मेरा ए आ रहा है। तो इस केस में क्या है, बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू सी। लाइक वाइज यदि मैं ऐसे डी के लिए चेक करूं, डी एंड सी का यदि मैं ज्वाइन निकालूं तो डी और सी का ज्वाइन क्या आएगा, हमारा डी आएगा, और डी और सी का हमारा मीट क्या आएगा, डी एंड सी का मीट क्या आएगा, हमारा सी आएगा। तो डेट मीन्स क्या है, डी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लाइक वाइज यदि मैं ऐसे चेक करूं बी और ई के केस में, तो यदि मैं बी और ई का यदि ज्वाइन निकालता हूं तो ज्वाइन निकालेंगे तो क्या आएगा, वी गेट ई, एंड बी ऑफ ई का मैं क्या निकालूं, मीट निकालूं, देन वी गेट बी। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इन दिस only one complement exists but other complement b complement c complement ये that are not exist। तो that means क्या हो गया, it is not complement। तो ये हमने सीखा बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एलिमेंट का निकालना। अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस सेज फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर ऑल यदि मैं कोई भी दो पेयर ले लूं, फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट आई एंड ओ। यदि हमारा आई एंड ओ सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स को इन फॉर इन ए लैटिस एल, यदि हमारा क्या है, फॉर ऑल पेयर ए कॉमा बी देयर एग्जिस्ट आई एंड ओ इन ए लैटिस एल, then we say complement of for all pair of a and b there exists I and o in a lattice L, then we say it is a complemented lattice। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, any element may have more than one complement। ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में हमें एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले एक ही एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट सिंपल वही केस जो भी हमने पहले लिया था, ए बी सी एंड डी, तो इसमें क्या है, क्या ये हमारी क्या कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है, यदि उसको हम चेक करें तो यहाँ पे क्या है, मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ रहा था, सी आ रहा था, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, मेरा डी आ रहा है। लाइक वाइज आई से डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मेरा ए हो गया, और सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मेरा बी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लीमेंटेड, तो वी से इट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। एक और केस लेते हैं, A, B, C, D, E and F। तो in this lattice we check if we take join of B and C we get F, likewise if we get meet of B and C we get A। likewise यदि मैं B और D का चेक करूं तो B और D का भी क्या होगा, हमारा ज्वाइन, we get F, and B और D का मीट यदि मैं निकालूंगा तो we get A। likewise if we check the B join of B and E we get F, and meet of B and E we get A। so that means B complement is equal to C complement is equal to D complement is equal to E complement। तो यहाँ पे क्या है, हमारे B का कॉम्प्लीमेंट मेरा सी डी हो गए, लाइकवाइज आई से C कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी डी, तो और एंड ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू F। तो डेट मीन्स क्या है, इसमें किसी भी नंबर ऑफ पेयर के लिए हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैटिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस से a lattice L is said to be distributive lattice if the following डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होल्ड। जो बेटा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होल्ड, यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होल्ड कर रहा है देन वी से इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इज फर्स्ट इज द इफ आई टेक ए ज्वाइन बी मीट सी देन वी गेट ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी, एंड सेकंड लॉ इज if I take A meet B join C then we get A meet B join A meet B। तो अभी ये बेटा दो जो लॉ हैं, इन दो लॉ यदि हमारे ये लॉ होल्ड करते हैं किसी भी उसमें मैट्रिक्स में लैटिस में देन वी से इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। फॉर एग्जांपल I take lattice L, there is a case 1 2 3 5 and 30. In this case if I take 2 and 2 3 5 means A equal to 2 and B equal to 3 and C equal to 5, then we check the distributive law. Let 2 join 3 meet 5 that is equal to 2 join 3 meet 3 join 5। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो 3 ज्वाइन ऑफ 3 एंड 5, ज्वाइन ऑफ 3 और 5 क्या हो गया हमारा, इट इज 30, एंड ज्वाइन ऑफ 2 एंड 3, तो ज्वाइन ऑफ 2 एंड 3 इज अगेन 30, देन मीट ऑफ 30 एंड 30 इज द 30 बाई एब्जॉर्प्शन लॉ। 3 एंड 5 का हमारा क्या हो गया मीट, क्या होगा 3 एंड 5 का मीट क्या हो गया 1, एंड 2 एंड 2 ज्वाइन 1, यदि 2 और ज्वाइन 1 का हम निकालें तो ये क्या आएगा हमारा ज्वाइन क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 इज नेवर इक्वल टू 30। सो इन दिस केस क्या है हमारा, ये हमने एक पर्टिकुलर एक पेयर निकाला 2 3 5 और उस केस में क्या होगा LHS is not equal to RHS, that means क्या हो गया it is not a distributive lattice। but हमारे पास कुछ ऐसे केस हैं जिसमें क्या होगा ये प्रॉपर्टी होल्ड भी कर रही होगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं लूँ 1, 2, 3, यदि हम इस केस में चेक कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, इट इज गिव यू 1 2 3 इज इक्वल टू 1 ज्वाइन 2 मीट 2 ज्वाइन 3। यदि हम इसमें चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 और 3 का हमारा ज्वाइन क्या आएगा, ज्वाइन ऑफ 2 एंड 3 इज 30, लाइकवाइज ज्वाइन ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू 2, एंड 2 एंड 30 का हमारा क्या होगा, यदि हम मीट निकालें तो क्या आएगा हमारा, इट इज गिव यू 2। लाइकवाइज 2 एंड 3 का हमारा मीट क्या आएगा, 2 एंड 3 का मीट क्या है हमारा 1। अब 1 और 1 का हमारा क्या आ रहा 1। तो ऐसे हमारी नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें क्या हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तुम इसमें और भी केस ले सकते हो, लाइट से 1 2 5 ले लो, 1 2 30 ले लो, एंड 1 3 30 ले लो, 1 3 5 ले लो। तो ऐसे कई भी केस बन सकते हैं। तो हम ऐसे सारे केस तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बेटा किसी नंबर ऑफ पेयर्स के लिए क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा हो बट हमारा कुछ के लिए होल्ड ना कर रहा हो, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी आती है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम एक चीज और कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, यदि हमारा क्या है, इफ वी गेट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस में कुछ हमारी पहचान है बाय विच वी रिकॉग्नाइज इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस और नॉट। तो देयर इज ए नोट, एक नोट लिख रहा हूं, there is a note in this lattice complement of an element
इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, वो क्या होना चाहिए हमारा, यूनिक होना चाहिए। डेट मीन्स क्या हो गया, डेट मीन्स ईच एलिमेंट हैज एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। हमारा एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ईच पेयर क्या है, सबके पास हर एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। यदि किसी में एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगी। और इसके अलावा क्या है, एक और भी तरीका है बाय विच रिकॉग्नाइज, तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की एक पहचान है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, हाउ यू रिकॉग्नाइज कि इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस और नॉट। तो पर्टिकुलर क्या है, कुछ शेप्स हैं। हमारा एक शेप होता है पेंटागन, फॉर एग्जाम्पल एंड काइट, जो भी उन्हें बनाया, काइट वाला शेप। तो जहां भी तुम्हें क्या है इस टाइप के दो शेप दिखे हैं, क्या है एंड पेंटागन एंड काइट, पेंटागन एंड काइट, तो ये क्या होंगे, कभी भी हमारे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, जो बी और सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमेशा एक एलिमेंट के कोई ना कोई एक, एटलीस्ट हमें एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसमें क्या होंगे, उसके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे मोर देन वन एडजस्ट कर रहे होंगे, तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। लाइक वाइज इन दिस केस ए बी सी डी एंड ई, तो इसमें क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी ई तीनों हो जाएंगे, लाइक वाइज सी का कॉम्प्लीमेंट बी डी ई तीनों इक्वल टू हो जाएंगे। तो डेट मीन्स क्या हो गया, इसमें ये वाली कंडीशन क्या होगी, हमारी फेल्स हो रही होगी। तो जब भी हमें इस टाइप के शेप्स देखने होंगे तो क्या होगा, जब भी इस टाइप के शेप देखेंगे तो वो क्या होंगे, कभी भी क्या होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द बुलियन अलजेब्रा। Boolean algebra says a lattice L is said to be Boolean algebra if it is complemented एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। यदि कोई लैटिस हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों कंडीशन को होल्ड कर रही है, देन वी से इट इज ए बुलियन अलजेब्रा। लाइकवाइज यदि मैं इसको एक ही सिंपल यदि एक वर्ड में कहूँ तो इसको नोट बना के चल लिख लो, आई से एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक कॉम्प्लीमेंट, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक complement, because complementary lattice says for every pair of element there exists more than one complement, either one complement, and distributive lattice says at most one complement exists। तो यदि हम दोनों को एंड करें तो क्या है, कंक्लूजन इज द एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ए यूनिक कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में यदि हम फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारी बुलियन अलजेब्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने केस लिया ए और बी, ये हमारी लैटिस है, यदि मैंने इस केस में देखूं तो क्या होगा, मेरा ए और बी का यदि मैं मीट निकालूं एंड ज्वाइन निकालूं, ए और बी का हमारा मीट क्या होगा, हमारा ए होगा और ज्वाइन क्या होगा, बी होगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, क्योंकि बी क्या है हमारा आई हो गया और ये क्या हो गया, ओ हो गया। तो डेट मीन्स क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, लाइकवाइज बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका एक ही कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इट इज ए बुलियन अलजेब्रा। और भी हम चेक कर सकते हैं,
और क्या हो सकता है हमारा केस सिंपल, यदि मैं कहूँ ये वाला केस ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी आ रहा है, तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक एक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस क्या हो गया, इट इज ए बुलियन अलजेब्रा। अब हम ऐसे केस ढूंढते हैं जहाँ पे क्या है हमारी बुलियन अलजेब्रा एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब जहाँ पे हमारी बुलियन अलजेब्रा नहीं होंगी जो लैटिस। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लूँ ए बी सी डी ई एफ और एक कोई एलिमेंट जी लेते हैं, तो इसमें हम चेक करते हैं क्या है ये हमारी बुलियन अलजेब्रा है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो क्या है, पहले इसमें हमारा सबका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बुलियन अलजेब्रा क्या है, बुलियन अलजेब्रा सेज इफ एवरी एलिमेंट हैव ए यूनिक कॉम्प्लीमेंट देन वी से इट इज ए बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यदि मैं बी और डी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बी और डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेरा जी भी होगा ई भी होगा। तो लाइक वाइज क्या होगा, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा इज इक्वल टू डी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ई और सी। यदि हम सबको देखें तो सबका क्या आ रहा है, हमारा एक से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट बुलियन अलजेब्रा। और यहाँ पे यदि हम एक चीज और चेक करें तो जी का मैं किसके साथ चेक करूं कि ये क्या ही मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा। यदि मैं जी और डी को चेक करूं तो जी और डी का मेरा क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, जी और डी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। यदि मैं जी और डी को देखूं तो इनका ज्वाइन क्या आ रहा है, एफ आ रहा है और मीट क्या आ रहा है हमारा ए आ रहा है। लाइक वाइज मैं बी के साथ चेक करूंगा तब भी यही कंडीशन ट्रू होगी, डेट मीन्स क्या हो गया, इट इज नॉट ए बुलियन अलजेब्रा। अब इसके साथ साथ क्या है, एक एक दो चीजें तुम्हें और बताता हूँ। तो ये तो हमारे टाइप्स ऑफ लैटिस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मगर कुछ कंक्लूजन है बड़े अच्छे, उन कंक्लूजन को ध्यान रखना, जिससे क्या है जो चीजें तुम्हारी हमेशा आगे हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, हम लोग बोलते हैं जीएलबी एंड एलयूबी, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम इसको जनरली सिंपल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इसको मानो तो ये क्या हो गया, इट इज ए डॉट एंड इट इज प्लस ऑपरेटर, या फिर इसको हम क्या कहेंगे डॉट को कंजक्शन एंड डिजंक्शन, ये भी ऑपरेटर हो गया। और इसके अलावा क्या है, इसको हम ये भी कहते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंट बाई इंटरसेक्शन और इट इज रिप्रेजेंट बाई यूनियन एंड इंटरसेक्शन से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, यदि इसको यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ। और इसके अलावा क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई एक सेट बनाया, देयर इज ए सेट पी ऑफ ए ऑन द सबसेट, मुझे इससे क्रॉसपेंडिंग क्या है, लैटिस बनाना है, देयर इज ए लैटिस ए बी सी हैव ए एलिमेंट। तो मैंने क्या है सिंपल, पहले मेरा क्या होगा फाई इसका होगा, फिर क्या होगा ए इसका मेंबर होगा, लाइकवाइज बी भी एक मेंबर होगा, देन सी एक मेंबर होगा। तो हमारा फाई सी से कनेक्ट है, फाई हमारा बी से कनेक्ट है, फाई हमारा ए से कनेक्ट है। लाइकवाइज क्या होगा हमारा, अब ए बी का सेट बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी का हो गया। नेक्स्ट तो ये ए बी हमारा इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा। लाइकवाइज क्या होगा हमारा एक ए सी सेट होगा, जिसमें क्या होगा हमारा ए भी कनेक्ट होगा और सी भी कनेक्ट होगा। लाइकवाइज क्या है, देयर इज ए बी सी पेयर, जो क्या होगा बी से कनेक्ट होगा और सी से कनेक्ट होगा। इसके अलावा क्या है, एक हमारा फाइनली क्या होगा, इसमें हमारे पावर सेट में ए बी सी भी आएगा, तो ये क्या होगा हमारा ए बी ए सी एंड बी सी, ये सबके सब क्या होंगे इसके मेंबर होंगे। तो पावर सेट में हमारे क्या है, देयर इज 8 एलिमेंट, 5 ए बी सी 4 और 4 ऊपर, तो टोटल क्या है 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट्स हमारे हो गए। वो क्या हो गया एक दूसरे के सबसेट है, तो हमने इसके क्रॉसपेंडिंग क्या बना दिया, लैटिस बना दिया। तो यदि हम लैटिस में यदि हम चेक करें तो हमारा यदि ए और सी, यदि मैं इसमें हम निकालूं ए सी और बी सी का क्या निकालूं मैं, लिस्ट अपर बाउंड या ज्वाइन, यदि मैं ए सी और बी सी का क्या निकालूं, ज्वाइन निकालूं, तो हम ए सी और बी सी का हमारा ज्वाइन क्या आ रहा है, वी गेट ए बी सी। और लाइक वाइज यदि मैं ए सी एंड बी सी का क्या निकालूं, मीट निकालूं, तो मीट निकालूं तो हमारा क्या मिल रहा है, वो कहाँ पे मिलेंगे हमारा, ए सी और बी सी का यदि हम मीट निकालें तो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, मीट कहाँ पे आ रहा है,
यदि हमें ए सी और बी सी का मीट निकालें तो क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा यूनियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मैं ए सी और बी सी में से यदि मैं इंटरसेक्शन करूं तो इनका इंटरसेक्शन के बी से वी गेट ए, और लाइकवाइज इफ वी गेट द यूनियन ऑफ ए सी एंड बी सी देन वी गेट द ए बी सी। तो हम इसको इससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीसीडी एंड एलसीएम। जीसीडी एंड एलसीएम भी हम बोल सकते हैं, जीसीडी एंड एलसीएम। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मेरे से। इसमें क्या है, हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें लैटिस के रिगार्डिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। और इसमें यदि हमें और तुम्हें कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो तुम अपनी क्वेरी अपने यूट्यूब लिंक पे उस पर कमेंट बॉक्स में डालो और आई गिव यू आंसर रिगार्डिंग लैटिस। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, देन वी गेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, एंड देन वी गेट फर्दर on the other topic. So okay, thank you.